discuss about the tetrapod limb development. So what do you mean by tetrapod limb development? Tetrapod limb development means it is having 4 limbs and its development. We will discuss about the development. ये जो 4 limbs जो present है, it can be 2 legs. ये जो present है, ये 2 legs भी हो सकता है and 2 hands. Okay. और in case of birds, ये जो hands जो है, it can be wings. हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे कि 4 लिम्स प्रेजेंट है. द एग्जाम्पल्स आर, ये जो टेट्रापोड लिम्ब जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट हो सकता है एम्फीबियंस, reptiles. It may be present in some of the all birds, mammals, और ये हमारा रैट है, इसमें भी प्रेजेंट होता है as well as in the chicken. उससे पहले हमें कुछ जर्म लेयर्स के बारे में भी जानना चाहिए. Like there are 3 germ layers that are the ectoderm, mesoderm and endoderm. So इनका रोल क्या है? ये जो 3 germ layers जो present है, these are responsible for making different organs, different parts of the body. Okay. So before discussing about the tetrapod limb development, we have to be very much clear about some of the basics like axis formation. यहाँ पे हम axis formation के बारे में discuss करेंगे. So there are 3 types of axis which we have to know. The first is the proximal and distal axis. ये जो proximal axis जो present है, जब हम hand के example लेंगे तो shoulder के portion जो present है, which is present near the shoulder, it is known as the proximal part. And जो finger जो present है, that is known as the distal part. जब हम hand के example लेते हैं, in the same case when we take the example of leg, proximal portion जो है, जो hip के region जो present है, that is the proximal part, and toe के region जो present है, that is the distal part. This is about the proximal and distal axis. The second axis is anterior and posterior axis. ये जो anterior and posterior axis है, we can see this example by saying the thumb. ये हमारा जो palm का जो thumb है, that is in the anterior portion, and जो pinky finger or the small fingers which is present, it is in the posterior portion. The third axis is the dorsal and ventral axis. जो back portion जो present होता है, that is known as the dorsal axis, and the front portion जो रहता है, that is known as the ventral axis. जब हम palm के बारे में discuss करेंगे, जो back portion जहाँ पे कि हमारा nail जो present है, उस portion को बोलते हैं हम dorsal, और जो palm का जो portion है, उसे हम बोलते हैं ventral portion. ठीक है. नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस कर रहे हैं लिम्ब डेवलपमेंट के बारे में. ये जो लिम्ब जो डेवलप हो रहा है, उसे भी कुछ स्पेस चाहिए. ये जो स्पेस जो प्रेजेंट है, यहाँ पे एक स्पेस प्रेजेंट है, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे लिम्ब का डेवलपमेंट के लिए. लिम्ब डेवलपमेंट के लिए ये सेल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है. और ये जो पोर्शन जो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज लिम्ब फील्ड. Okay, a limb field, we can tell that limb field is the area where the limb is developed. और ये जो development जो present होता है, it is initiated by forming a bud. यहाँ पे different layers present रहता है, like the germ layers. It is mesoderm, ectoderm, mesoderm and endoderm. यहाँ पे जो mesoderm जो present है, यहाँ पे जो mesoderm जो present है, it is a highly proliferating cell. That means it is having the ability to divide. और ये इतना divide होता है कि बाहर की तरफ जो वो ectoderm जो present है, वो bulge out हो जा रहा है. ये जो ectoderm जो present है, due to the multiple division of the mesoderm, ये बाहर की तरफ bulge out हो जा रहा है. और this bulging out portion is known as limb bud. Okay, from this limb bud, there is origin of, or we can tell that there is development of total limb. Development of limb take place. Okay. और हमारा जो limb जो present है, we can see here the limbs, it is having different type of regions. Like यहाँ पे देखो, ये जो हम डिस्कस किए थे कुछ एक्सेस के बारे में, यहाँ पे ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए हैंड. सो यहाँ पे जो शोल्डर के पोर्शन जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज प्रॉक्सिमल पोर्शन, और ये जो प्रेजेंट है विच इज नियर द टिप्स, इट इज नोन एज द डिस्टल पोर्शन. और हम जब डिस्कस करेंगे ये हैंड के बारे में, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू
स्टाइलोपोड, जिगोपोड एंड ओटोपोड। ये जो पोर्शन ब्लू कलर का जो पोर्शन है उसे हम बोलते हैं स्टाइलोपोड। येलो कलर का जो है इट इज नोन एज जिगोपोड एंड ये जो फिंगर्स जो प्रेजेंट है रेड कलर वाला दैट इज नोन एज द ओटोपोड इन केस ऑफ हैंड। इस सेम केस अगर हम लेग के बारे में बात करेंगे, ये जो है दिस इज नोन एज ह्यूमरस इन केस ऑफ लेग्स। ये जो येलो कलर का पोर्शन जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज अल्ना एंड रेडियस और ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज कैडल्स एंड डिजिट्स। ओके इन केस ऑफ लेग्स, बट इन केस ऑफ हैंड्स इट इज नोन एज स्टाइलोपोड। ये वाला जो प्रेजेंट है ब्लू कलर वाला इट इज नोन एज स्टाइलोपोड। ये जो येलो कलर का जो प्रेजेंट है इट इज जिगोपोड और ये रेड कलर का जो प्रेजेंट है इट इज नोन एज ओटोपोड। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कुछ फोर लिम्ब field. This is known as four limb field. ये portion, this is a portion where the limb formation take place. यहाँ पे कुछ axis है, dorsal axis, ventral axis, posterior and anterior portion, and or we can tell that posterior and anterior axis. यहाँ पे देखो AER present है. We will discuss how this AER form. यहाँ पे ये वाला भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि थ्री रीजंस प्रेजेंट है लाइक स्टाइलोपोड, जिगोपोड, ओटोपोड इन केस ऑफ हैंड्स एंड इन केस ऑफ लेग्स इट इज ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स एंड डिजिट्स। ओके, सो हमारा जो लिम्ब जो प्रेजेंट है that is one of the germ layer which is known as mesoderm. ये जो mesoderm है different type of mesoderm present रहता है like intermediate mesoderm, chorda mesoderm, paraxial mesoderm, lateral plate mesoderm. Okay, these are different type of mesoderms which are present. हमें हमारा लिम्ब डेवलपमेंट, के लिए क्या चाहिए? हमें लिम्ब डेवलपमेंट के लिए चाहिए lateral plate mesoderm. Okay, which will give rise to limb bones. Okay, the first thing which we have to know is हमारा जो limb जो फॉर्म हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए bones चाहिए as well as muscles चाहिए। ठीक है, ये जो bones जो present है it is being originated from lateral plate mesoderm. It is originated from lateral plate mesoderm और ये जो muscles जो present है it is originated from सोमाइट। These are two types of cells. यहाँ पे देखो ये जो पैराक्सियल मेसोडर्म प्रेजेंट है यहाँ से ही ओरिजिनेट हो रहा है हमारा सोमाइट एंड दिस सोमाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मसल्स। ओके, ये जो सोमाइट जो प्रेजेंट है वी कैन सी दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग कार्टिलेज, टेंडॉन्स, skeletal muscles, endothelial and dorsal aorta, dermis and skeletal muscles. But as we are discussing about the limb field, so for our limb development, so for the limb development we require two things, that is the bone and the muscles for limb. So ये जो bone जो present है it is formed by the lateral plate mesoderm. We can see that it is forming the limb bones. Okay, and from the paraxial mesoderm the somite is being originated and from this somite there is formation of skeletal muscle. Okay, so next ये जो limb जो present है हमारा जो limb field जो present है that cells are responsible for making the lymph field or not. How we will say that एक एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे जो कि था लिम्ब बर्ड के डेवलपमेंट, लिम्ब बर्ड इंडक्शन के एक एक्सपेरिमेंट था। यहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सोमाइट्स फ्रॉम लिम्ब टू फ्लैंक लेवल। हमारा जो लिम्ब फील्ड जो प्रेजेंट है हम डिस्कस किए कि हमें अभी बनाना है लिम्ब फील्ड। ठीक है, सॉरी लिम्ब बनाना है। लिम्ब बनाने के लिए हमें एक लिम्ब फील्ड चाहिए, एक स्पेस चाहिए जहां से कि हमारा लिम्ब फॉर्मेशन का ओरिजिन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे है दिस इज द लिम्ब फील्ड। ये जो पोर्शन 15, 16, 17, 18, 19 जो प्रेजेंट है येलो कलर का ये है लिम्ब फील्ड और ये है फ्लैंक रीजन जो कि है नॉन लिम्ब पार्ट। ग्रीन कलर का जो है दिस आर द नॉन लिम्ब पार्ट। ओके, ये जो लिम्ब फील्ड जो प्रेजेंट है यहाँ पे ही लिम्ब बर्ड का डेवलपमेंट होगा। तो दिस इज द डोनर एंड दिस इज द रेसिपिएंट। रेसिपिएंट में दिस आर रिसीविंग। यहाँ से क्या किया गया, ये जो 15, 16, 17, 18 इतना पोर्शन क्या किया गया यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर लिए। ठीक है, दिस इज द ट्रांसप्लांटेड पार्ट। So what happens when it is received by the recipient? ये जो पोर्शन जो प्रेजेंट है इसका लिम्ब फील्ड का एरिया बड़ा हो गया। So here this is the reason where the limb bud will form. Okay, so the next experiment was transplantation of somites from flank to limb muscle. अगर हम एक नॉन लिम्ब सेल को लिम्ब फॉर्मिंग एरिया में अगर हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो क्या होगा, लिम्ब फील्ड का फॉर्मेशन
कम हो जाएगा। ये क्योंकि हमने रिप्लेस कर लिए हैं लिम्फोइड को, वी हैव ऑलरेडी रिप्लेस द नॉन लिम्फ सेल्स इनटू द लिम्फोइड। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट था 15, 16, 17, 18, 19 टिल 19 यहाँ पे प्रेजेंट था। दिस आर द लिम्फोइड। यहाँ पे कुछ पोर्शन कट कर लिए लाइक 17, 18 17, 18 is now removed, and here the 20, 21, 22, 23 is joined here. So these are not the limb forming area, these are the non limb forming area. ये जो present है, ये जो present है, ये जो है, this is the limb field. तो ये क्या हो गया, ये अब कम हो गया एज कंपेयर टू द टॉनर। सो इसका जो लिम्फ का फॉर्मेशन होने के लिए जो लिम्फोइड फॉर्म होगा उसका स्पेस कम होगा। ओके, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट टू कंफर्म दैट देयर आर सर्टेन सेल्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर फॉर्मिंग द लिम्फ, और उसके लिए एक लिम्फ फील्ड चाहिए। ओके, सो देयर आर लिम्फ फॉर्मिंग एरिया एज वेल एज नॉन लिम्फ फॉर्मिंग एरिया। Okay, this was all about the experiment which was conducted to see whether all the cells can form the lymph field, or there are certain cells which is having certain area for the formation of lymph field. और ये जो lymph field जो present होता है, ये एक ऑर्गेनिज्म का अगर हैंड, यहाँ पे अगर एक हैंड है तो इसका ऑपोजिट ओरिएंटेशन में और एक लिम्फ फील्ड होगा जहाँ की हैंड का फॉर्मेशन होगा। इन द सेम वे अगर यहाँ पे फुट फॉर्मेशन हो रहा है, लेग फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके ऑपोजिट ओरिएंटेशन में ही एक लिम्फ फील्ड होगा जो कि फुट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, और वी कैन टेल दैट लेग का फॉर्मेशन करेगा। सो अगर यहाँ पे एक हैंड है, यहाँ पे दूसरा हैंड आकर प्लेस होगा, उसका लिम्फ फील्ड यहाँ पे होगा, वैसे नहीं होगा। दिस आर प्लेस्ड इन द ऑपोजिट ओरिएंटेशन। ओके, सो here there are certain zones, or we can say that there are certain domains. ओके, ये जो लिम्फ बर्ड जो फॉर्मेशन हो रहा है उसका कुछ कुछ डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है? इट इज द फर्स्ट इज द प्रॉक्सिमल जोन। ये प्रॉक्सिमल जोन क्या है? ये जो प्रॉक्सिमल जोन प्रेजेंट है, इट इज द हाईली proliferating, it is the highly proliferating mesenchymal cell। यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है, मेसेनकाइमल जो सेल्स प्रेजेंट है, या इस पोर्शन पे वो बहुत सारे सेल्स को डिवाइड करेंगे, उसका डिवीजन कैपेसिटी बहुत है। एंड these are the undifferentiated cells। और जैसे ही इस एरिया में उसका सेल्स का अमाउंट ज्यादा हो रहा है, then what it is doing is it is telling that it is helping the ectoderm to bulge out, so the limb bud is formed। The next domain which is present is ZPA। ये जो ZPA, it is known as zone of polarizing activity। ओके, ये जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो प्रेजेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द आइडेंटिटी, or we can tell that it is responsible for giving the axis, that is the posterior and anterior axis। अगर ZPA अगर present है, then it is known as posterior axis। अगर ZPA उसका opposite orientation में क्या होगा? ZPA present नहीं रहेगा, that is the reason it is known as anterior axis। ओके, यहाँ पे देखो AER जो form हुआ है, this is the place where the ectoderm is thickened। Okay, this is known as AER जो present है, it is known as apical ectodermal ridge। Okay, this is the apex portion जहाँ पे कि ectoderm का bulge हुआ है। Okay, to form the limb bud, ectoderm bulge to form the limb bud। यहाँ से ही हमारा limb का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट थिंग विच वी हैव टू सी इज, ये जो लिम्ब का डेवलपमेंट हो रहा है, इसका लिम्ब फील्ड को स्पेसिफाई करने के लिए कुछ कुछ जीन्स का रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट जीन इज द रेटिनोइक एसिड। ये जो रेटिनोइक एसिड प्रेजेंट है, इट इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए, ये जो है रेटिनोइक एसिड जो प्रेजेंट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द proximal, it is responsible for specifying proximal and distal axis।
ओके, द नेक्स्ट इज द हॉक्स जीन। हॉक्स जीन जो प्रेजेंट है, हम देखे थे कि स्टाइलोपोड, जाइकोपोड, ऑटोपोड ऐसे डिफरेंशिएट हो रहा है हमारा लिम्ब जो प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे फोर्थ लिम्ब के बारे में, देन इट वाज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड एंड ऑटोपोड। ठीक है, ये जो पैटर्निंग जो होता है, दिस इज ड्यू टू दिस हॉक्स जीन। ओके, द नेक्स्ट जीन विच इज प्रेजेंट इज TBX जीन। ये जो TBX जीन, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वेदर द लिम्फ फिल्ड विल फॉर्म द फोर्थ लिम्ब और हाइंड लिम्ब। ओके, दिस TBX जीन इज रिस्पॉन्सिबल। अगर ये फोर्थ लिम्ब डेवलप करेगा, then TBX5 is responsible. If it will form the hind limb, TBX4 is responsible. So what next? ये जो हो गया, ये जो है हमारा 3 टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट है, दैट इज द रेटिनोइक एसिड, हॉक्स जीन एंड TBX जीन। रेटिनोइक एसिड जो प्रेजेंट है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन A and this is responsible for specifying the axis, that is the proximal and distal axis. Next is the हॉक्स जीन। हॉक्स जीन जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, स्पेसिफाई करेगा हमारा स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड को। नेक्स्ट इज द TBX जीन। ये जो TBX जीन जो प्रेजेंट है, ये डिसाइड करेगा कि वेदर इट विल फॉर्म द फोर्थ लिम्ब और इट विल फॉर्म द हाइंड लिम्ब। ओके, अगर TBX5 प्रेजेंट है, देन इट विल फॉर्म द फोर्थ लिम्ब। अगर TBX4 प्रेजेंट है, देन इट विल फॉर्म द हाइंड लिम्ब। ओके, द नेक्स्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ओके, देन यहाँ पे हम मेसोडर्म और एक्टोडर्म के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंट है लेटरल प्लेट मेसोडर्म। ये जो प्रेजेंट है लेटरल प्लेट मेसोडर्म, यहाँ से कुछ सेल्स आएंगे और माइग्रेट करके ये खुद को प्रोलिफरेट करेंगे। दैट मीन्स इट विल हेल्प इन द डिविजन। ये जो प्रेजेंट है, ये डिवाइड करके बहुत सारा डिविजन करने के बाद ये क्या करेगा, अगर डिवीजन बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ पे एक्टोडर्म, बाहर के लेयर में कौन प्रेजेंट है, बाहर के लेयर में प्रेजेंट है हमारा एक्टोडर्म। ये क्या करेगा, बल्ज आउट हो जाएगा। इसमें सिर्फ लेटरल प्लेट मेसोडर्म का सेल्स ही नहीं आएंगे, यहाँ पे सोमाइट सेल्स भी माइग्रेट करके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, लेटरल प्लेट मेसोडर्म का सेल्स भी प्रेजेंट होंगे और सोमाइट सेल्स का भी सोमाइट सेल्स भी प्रेजेंट होगी, जो कि डिवाइड करके आगे जाकर मसल सेल्स और स्केलेटल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, दिस इज हेल्पिंग इन द बल्जिंग आउट। ये जो है बल्ज आउट हो गया है अभी। ठीक है, ये बल्ज आउट होकर क्या होगा, ये लिम्ब बड का डेवलप करेगा। यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लिम्ब बड। ओके, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, ये लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म जो क्या करेगा, इट विल फॉर्म, we can see that यहाँ से ये सेल माइग्रेट होकर यहाँ आए and this is the limb skeletal precursor cell. ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो प्रेजेंट है, यहाँ पे ये ब्राउन कलर में जो प्रेजेंट है, it is the limb muscle precursor cell which is derived from somatic cells. Okay, this is about the limb development. डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसे हम 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक द फर्स्ट इज द मेकिंग मेसोडर्म परमिसिव फॉर लिम्ब फॉर्मेशन। लिम्ब फॉर्मेशन के लिए मेसोडर्म को हमें परमिशन देना चाहिए। नेक्स्ट, सेकंड इज द स्पेसिफाइंग फोर लिम्ब एंड हाइंड लिम्ब, वेदर इट विल फॉर्म द फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब, उसे भी स्पेसिफाई करना चाहिए, ताकि वो लेग फॉर्म करेगा या हैंड फॉर्म करेगा, वो स्पेसिफाई हो सकता है। The third is the epithelial mesenchymal transition and fourth is the 2 positive feedback loops for bud formation. पहले हम देखेंगे making mesoderm permissive for limb formation. Okay, इसमें 2 genes का responsible है, like retinoic acid and FGFA. ये जो present है, these two are antagonistic to each other. ठीक है, ये जो प्रेजेंट है, ए जो प्रेजेंट है, ये टाइम से पहले लिम्ब बर्ड का डेवलपमेंट करने के लिए इनिबिट कर रहा है एंड दिस रेटिनोइक एसिड इज responsible for initiation of फोर्थ लिम्ब एरिया। ठीक है, और ये जो प्रेजेंट है, these 2 genes are present in chick, mouse as well as zebrafish. ठीक है, अगर there are 2 cases, like
अगर रेटिनोइक एसिड अगर प्रेजेंट होता है देन इट इज फॉर्मिंग द फोर लिम्ब, फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होगा। अगर retinoic acid absent है then there is no fourth limb. Okay, we have discussed that this two FGF8 and retinoic acid they are antagonistic to each other. So अगर हमारा FGF8 जो present है अगर वो present होगा तो क्या होगा, then what it will do, it will inhibit the formation of fourth limb. Okay, if it is not present, FGF8 अगर present नहीं होगा then ये क्या करेगा, this can form the fourth limb. Okay, so there are some cases like there is some mutation cases or gain of function cases. अगर gain of function हो गया है हमारा FGF8 को, then ये क्या करेगा, then it will inhibit the fourth limb formation. अगर loss of function हो गया तो loss of function हो गया तो FGF8 का, then what it will do, it will form the fourth limb. Okay, अगर loss of function हो गया हमारा retinoic acid का, then क्या होगा, then it will inhibit the fourth limb. अगर gain of function हो गया retinoic acid का, then it will form the fourth limb. Okay, so there are certain cases, experimental cases like अगर हमारा retinoic acid जो है वो present है as well as FGF8 भी present है. So in this case what happens, who will win? ये जो RA जो present है it is working as a transcription factor and ये जो RA जो present है ये FGF8 को inhibit कर लेगा and it will form the fourth limb. Okay, और ये जो fourth limb का फॉर्मेशन होगा इसके लिए और एक जीन का भी रिस्पॉन्सिबल है लाइक TBX5 जीन. ओके, सो ये जो RA जो प्रेजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ TBX जीन, ये क्या करेगा, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म को ये क्या करेगा, परमिशन देगा. इट गिव्स द परमिशन दैट नाउ यू कैन फॉर्म द फोर्थ लिम्ब. ओके, सो यहाँ पे LPM, ये RA और TBX5 जीन जो प्रेजेंट है इन दोनों के प्रेजेंस में दे विल इंस्ट्रक्ट द LPM that now we have given the permission that now you can form the fourth limb, or we can tell that the fourth limb bud initiation can take place. Okay, और यहाँ से हमारा fourth limb का डेवलपमेंट हो सकता है. This was about the role of the retinoic acid and FGF, their mutation cases, and how this is instructing a mesoderm, that now they are ready for initiating for the fourth limb, और ये limb formation का initiation कर सकता है. So in this we have discussed the first one that is making mesoderm permission for limb formation. यहाँ पे क्या हुआ, retinoic acid ने in presence of retinoic acid and in absence of FGF8, it has instructed or it has given the mesoderm permission that now in presence of TBX5 gene, now you can make the limb that is the fourth limb in presence of another one gene that is the TBX5. Okay, देखेंगे specifying fourth limb and hind limb, whether it will form the hind limb or fourth limb ये हम देखेंगे. fourth limb के लिए क्या चाहिए था, fourth limb के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था it was TBX5, और हाइंड लिम्ब के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, हाइंड लिम्ब के लिए रिस्पॉन्सिबल था हमारा TBX4. ये जो लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए 3 लेयर्स, दैट इज मेसोडर्म चाहिए, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म चाहिए, और क्या चाहिए, एंड वी रिक्वायर एक्टोडर्म. हमारा मेसोडर्म से क्या सिक्रेट हुआ, रेटिनोइक एसिड का सिक्रेशन हुआ, एंड इन presence of retinoic acid the TBX5 gene is synthesized, और ये जो TBX5 gene जो प्रेजेंट है ये क्या सिक्रेट कर रहा है, ये सिक्रेट कर रहा है FGF10, and this FGF10, ये जो FGF10 जो प्रेजेंट है it is stabilized. ये जो FGF10 स्टेबलाइज कैसे हो रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय WNT2B. ओके, उसके बाद क्या होगा, ये जो FGF10 now it is stabilized. Now this FGF10 what it will give is, ये जो FGF10 है ये देगा हमें WNT3A का फॉर्मेशन करेगा, as well as it will form the
एपिकल एक्टोडर्मल रिज, ठीक है, विच इज नोन एज AER, इसका फॉर्मेशन करेगा। और क्या करेगा, ये जो WNT3A जो फॉर्म हुआ है उसके वजह से FGF8 का भी फॉर्मेशन करेगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द FGF8? ये FGF8 का फॉर्मेशन ये है कि ये बहुत सारा FGF10 का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ड्यू टू दिस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द फोर्थ लिंब। ओके, सो यहाँ पे जो पॉजिटिव लूप जो चल रहा है कैसे चल रहा है, यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे जो FGF10 जो प्रेजेंट है, इट इज गिविंग AER that is known as apical ectodermal ridge as well as FGF8। ये जो FGF8 जो present है, it is again giving the FGF10। Why it is giving the FGF10? Because it will synthesize more FGF। अगर FGF10 का सिंथेसिस ज्यादा होगा देन FGF8 का भी फॉर्मेशन होगा, ड्यू टू विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ फोर्थ लिम्ब बड। फोर्थ लिम्ब बड का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इट कैन बी WNT3, इट कैन बी WNT3 और WNT3A। ये द हाइंड लिम्ब। यहाँ पे हम देखेंगे हाइंड लिम्ब के बारे में। इससे भी क्या चाहिए, मेसोडम चाहिए, मेसोडम, लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडम एज वेल एज एक्टोडम चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेजेंट है, हमें RA नहीं चाहिए यहाँ पे। दिस FGF10 जो प्रेजेंट है, इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू TBX4। TBX4 के वजह से FGF10 का सिंथेसिस हो रहा है। एंड WNT8C जो प्रेजेंट है, इट स्टेबिलाइज FGF10। ओके, सो यहाँ पे ये क्या करेगा, FGF10 जो प्रेजेंट है, नाउ इट विल गिव WNT3A इन द एक्टोडर्म। एंड WNT3A के साथ साथ वो और क्या देगा, इट विल गिव द AER दैट इज एपिकल एक्टोडर्मल रिज। और ये जो WNT3A जो प्रेजेंट है, इट विल गिव राइज टू FGF8। और ये FGF8 जो प्रेजेंट है, इट विल tell that now you have to synthesize more FGF10। it is giving a positive feedback to FGF10 that you have to generate more FGF10। ये FGF10 जो present है, ये FGF8 को produce करेगा and this FGF8 will again give a positive feedback that you have to synthesize FGF10। और ये जो है, यहाँ से फॉर्मेशन होगा क्या, हमारा हाइंड लिम्ब का बर्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो ये जो TBX4 जो प्रेजेंट है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो ओरिजिनेट हो रहा है इसलेट 1 से। कहाँ पे, माउस पे। हम देखेंगे माउस और चिक का दोनों केस देखेंगे, ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। फर्स्ट वी विल सी अबाउट द माउस। हम जब बात करेंगे एक माउस के बारे में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम TBX4 के बारे में डिस्कस किए थे। ये जो TBX4 जो प्रेजेंट है, वो कहाँ से आया, ये आया हमारा इसलेट 1 से। इसलेट 1 जो प्रेजेंट है, दिस इज गिविंग राइज टू TBX4 एज वेल एज ये जो इसलेट 1 जो प्रेजेंट है, ये बीटा कैट को भी फॉर्मेशन करेगा। दिस इसलेट 1 जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, FGF10 का फॉर्मेशन करेगा। एंड FGF10 can give rise to beta catenin and beta catenin will also help in the formation of FGF10। और ये जो TBX4 जो प्रेजेंट है, इसलेट 1 के साथ साथ और एक फैक्टर दैट इज नोन एज PTX1 विच इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इसके वजह से भी TBX4 का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, दिस इज फॉर्म्ड इन द lateral plate of mesoderm। lateral plate of mesoderm। नाउ ये जो FGF10 जो प्रेजेंट है हमारा एक्टोडर्म में, ये क्या प्रेजेंट फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा WNT3। ओके, ये जो WNT3 जो प्रेजेंट है, दिस विल गिव राइज टू FGF8। ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, नाउ व्हाट इट विल हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ AER दैट इज एपिकल एक्टोडर्मल रिज, as well as it will give a positive feedback to FGF10 that now you make more FGF10। or due to this AER, now there will be origination of hind limb। यहाँ पे हाइंड लिम्ब का भी फॉर्मेशन हो गया है,
ठीक है। सो नाउ वी विल सी सम ऑफ द म्यूटेशन केसेस भी हम देखेंगे, एक साथ ही देख लेंगे कि म्यूटेशन केस क्या है। ये जो इसलेट 1 जहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इससे हमें अभी तक पता नहीं है कि ये कहाँ से फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है। सो दैट इज सम ऑफ द म्यूटेशन केस। म्यूटेशन केस, अगर ये जो इसलेट 1 जो प्रेजेंट है, जो कि TBX4 का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर ये म्यूटेशन हो गया है, इसलेट 1 अगर म्यूटेशन हो गया है, देन क्या होगा, देयर विल बी नो हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। क्यों? बिकॉज दिस इसलेट 1 इट वाज वर्किंग एज अ इनिशिएटर, इट इज द इनिशिएटर ऑफ हाइंड लिम्ब बर्ड फॉर्मेशन। ये जो है हाइंड लिम्ब का जो बर्ड जो है उसका फॉर्म, इनिशिएटर ऑफ हाइंड लिम्ब बर्ड। इसलेट 1 जो प्रेजेंट है, इट इज द इनिशिएटर ऑफ हाइंड लिम्ब, बट अगर ये म्यूटेट हो गया तो कुछ भी हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। द नेक्स्ट इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि है PTX1, अगर इसका म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, PTX1 का अगर म्यूटेशन हो गया तो क्या होगा, यहाँ पे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन तो नहीं रुकेगा, लेकिन देयर विल बी सम malformation of structure। ओके, यहाँ पे PTX1 का अगर म्यूटेशन हो जा रहा है, then it will not give rise to a normal hind limb. It will give some of the variation, or there will be some of the problem in the hind limb. But अगर islet 1 का ही mutation हो गया है, then what it will do, then it will not give any of the hind limb, because ये जो origin हो रहा है, it is due to the islet 1, और ये जो patterning जो हो रहा था, it was due to PIT-X। पैटर्निंग मतलब क्या है, अगर वो उसका जो फॉर्मेशन होगा, उसका जो हाइंड लिम्ब का जो फॉर्मेशन होगा, उसके बाद उसका फिंगर होगा, वो स्केलेटन होगा, मसल होगा, उसमें कुछ भी डिफरेंशिएट नहीं होगा अगर PTX1 का म्यूटेशन हो गया है। अगर इसलेट 1 का म्यूटेशन हो गया है तो हाइंड लिम्ब का ही फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन ऑफ द चिक। ये जो चिक का जो हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए क्या चाहिए, TBX4 चाहिए। क्यों? फॉर हाइंड लिम्ब ऑफ चिक। ओके, यहाँ पे हमारा जो माउस पे हम क्या देखे थे, हम देखे थे कि इसलेट 1 एक था जो कि रिस्पॉन्सिबल था हमारा TBX4 का फॉर्मेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे एक अननोन फैक्टर की वजह से TBX4 का फॉर्मेशन हो रहा है, एज वेल एज PIT-X1 का जो कि है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसका भी फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस PIT-X इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द TBX4 जीन। और ये जो TBX4 जीन, इसके वजह से FGF10 का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड इट इज स्टेबिलाइज्ड बाय अनदर वन फैक्टर दैट इज WNT8C। ये जो है ये स्टेबिलाइज कर रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा है, दिस इज इन द lateral plate mesoderm। ओके, ये जो FGF10 जो प्रेजेंट है, इट इज गिविंग राइज टू WNT3A, एंड दिस WNT3A इज गिविंग राइज टू FGF8। ओके, ये FGF8 के वजह से क्या होगा, लिम्बर्ड का इंडक्शन होगा by giving the AER। it will form the एपिकल एक्टोडर्मल रिज। एक बल्जिंग आउट होकर उसका एक्टोडर्म का एक वाइड पोर्शन होगा जो कि बोल रहे हैं हम AER। ड्यू टू विच देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ हाइंड लिम्ब। यहाँ पे हाइंड लिम्ब का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, इट इज इन द एक्टोडर्म। और ये FGF8 जो प्रेजेंट है, अगेन इट इज गिविंग द FGF10, it is inducing to form more FGF10, that means it will again divide and it will form the FGF8, due to which there will be formation of AER। Okay, this was how the hind limb is formed in case of chick as well as in case of mouse। एक डायग्राम के हिसाब से भी हम देख लेंगे कि ये कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, here we can see that ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, FGF8 and this RA which is present, it is antagonistic to each other। ये जो है ये फूड लिम्ब फील्ड का एक
एरिया है जहाँ पे कि यहाँ पे देखो यहाँ पे RA प्रेजेंट है एंड हियर द FGF8 एंड FGF8 यहाँ पे दोनों साइड FGF8 RA को इनहिबिट करके रख रहे हैं एंड दिस टू आर वर्किंग एज एंटागोनिस्टिक वे। नाउ ये जो B का है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे है लेटरल प्लेट ऑफ मेसोडर्म, यहाँ पे है एक्टोडर्म। चिक माउस फिश का फोर्थ लिम्ब का बर्ड का इनिशिएशन है। अगर हम बात करेंगे फोर्थ लिम्ब पे, वहां पे हम देखे थे कि RA का वर्क हो रहा है। रेटिनोइक एसिड इज वर्किंग इन केस ऑफ फोर्थ लिम्ब। ये जो RA जो प्रेजेंट है इट वाज गिविंग राइज टू TBX5 और ये TBX5 जो प्रेजेंट है इट वाज हेल्पिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ WNT2B। ये जो WNT2B जो प्रेजेंट है इट वाज स्टेबलाइजिंग FGF10। ये जो FGF10 जो present है it was again this is working as a positive loop, like we can see that ये जो FGF10 जो present है ये again TBX5 को formation करने के लिए भी help कर रहा है and this FGF10 is giving rise to WNT3 और WNT3A in the ectoderm। ये जो WNT3A जो है it is again giving the FGF8 और ये FGF8 जो present है it is inducing to form the FGF10 और ये FGF8 when it forms it will give rise to initiation of fourth limb। ओके यहाँ पे TBX5 जो प्रेजेंट है एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन करने के लिए भी हेल्प कर रहा है, लाइक ए एपिथेलियल सेल इज ट्रांसफर्ड इनटू ए मेसेनकाइमल सेल। ओके दिस वाज अबाउट द चिक फोर्थ लिम्ब डेवलपमेंट इन केस ऑफ ए चिक। यहाँ पे हम देख सकते हैं चिक का हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन। अगर चिक का हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक अननोन फैक्टर के वजह से PTX1 का फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज TBX4 का भी फॉर्मेशन हो रहा है एंड इट इज गिविंग TBX4 ड्यू टू दिस TBX4 देयर इज सेक्रेशन ऑफ WNT8C एंड दिस WNT8C इज स्टेबलाइजिंग दिस FGF10। Okay, and FGF10 is again helping in giving the FGF8C और ये FGF10 जो present है ये TBX4 का भी again secretion कर सकता है as well as like FGF10 is helping in the formation of WNT3A। ये जो WNT3A जो present है ये दे रहा है हमें FGF8। Again this FGF8 is giving a positive feedback that you have to now synthesis FGF10 और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है हमारा हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब के फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए TBX4, यहाँ पे चाहिए TBX4 और क्या चाहिए PIT-X ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। नेक्स्ट इज द माउस हाइंड लिम्ब फॉर्मेशन। ये जो माउस का हाइंड लिम्ब का जो फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे देखो PIT-X1 भी रिस्पॉन्सिबल है, islet1 भी रिस्पॉन्सिबल है हमारा TBX4 के फॉर्मेशन के लिए। ओके एंड islet1 इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर WNT बीटा कैटेनिन और ये WNT बीटा कैटेनिन के वजह से FGF10 का फॉर्मेशन हो रहा है एज वेल एज TBX4 इज ऑल्सो गिविंग द FGF10 और ये FGF10 के वजह से WNT3 का फॉर्मेशन हो रहा है विच इज स्टेबलाइजिंग और गिविंग द FGF8 एंड ड्यू टू दिस FGF8 there is formation of hind limb formation in case of mouse और ये FGF8 again it is helping or giving the positive feedback that you have to now give the FGF10। This was the trichromatic representation about the work of the forelimb and hind limb in the lateral plate mesoderm as well as in the ectoderm के बारे में, जो कि एक पार्ट है हमारा टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट का। ये जो हॉक्स चेन्स जो प्रेजेंट है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हॉक्स चेन्स लाइक इट कैन बी हॉक्स 9, हॉक्स 10, हॉक्स 11, हॉक्स 12 और हॉक्स 13। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ हॉक्स चेन्स जो प्रेजेंट है इट इज रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग द लिम्ब्स इनटू स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड एंड ऑटोपोड। ये जो स्टाइलोपोड, ज़िगोपोड और ऑटोपोड जो प्रेजेंट है इन केस ऑफ फोर लिम्ब का मतलब क्या है, इट इज हैंड and in case of hind limb we will discuss what they are और ये जो है leg का रीजन है। ये जो स्टाइलोपोड in case of fourth limb इसे क्या बोलते हैं, इससे हम बोलेंगे humerus, it is humerus और in case of hind limb it is femur। ये जो ज़िगोपोड जो प्रेजेंट है in case of fourth limb it is ulna and radius and in case of hind limbs it is tubula plus fibula और in case of otopod ये जो present है in case of fourth limb it is wrist and finger, it is wrist and finger and in case of
हाइंड लिम्ब इट इज एंकल प्लस टोस। ओके, ये जो स्टाइलोपोड जो प्रेजेंट है इसके लिए जो हॉक्स चेन रिस्पॉन्सिबल है इट इज हॉक्स 9 एंड हॉक्स 10। ज़िगोपोड जो प्रेजेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉक्स 11 और ओटोपोड जो प्रेजेंट है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हॉक्स 12 एंड हॉक्स 13। So these are different type of hawks chains which are responsible for patterning the limbs. ये जो hawks chains जो present है इसका अगर म्यूटेशन होगा तो there are different type of malformation which is seen during the development. Different type of hawks genes like it can be hawks 9, 10, 11, 12, 13. अगर इन genes का अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या होगा? ये different hawks genes present थे जो कि different function कर रहे थे. जो hawks gene काम नहीं करेगा जिसका म्यूटेशन हो जाएगा then that reason will not form or there will be some of the problem which will be caused in that area. ओके हमारा हॉक्स 11 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हॉक्स 11 जो प्रेजेंट था अगर इसका म्यूटेशन हो जाएगा, हॉक्स 11 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज़िगोपोड। अभी अगर इसका म्यूटेशन हो गया, इफ देयर इज म्यूटेशन देयर विल बी नो ज़िगोपोड फॉर्म। हमारा हॉक्स 13 किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? हॉक्स 12 और हॉक्स 13 रिस्पॉन्सिबल था हमारा ऑटोपोड फॉर्मेशन करने के लिए। अगर इन हॉक्स जीन का म्यूटेशन हो जाएगा देन देयर विल बी नो ऑटोपोड। ओके, अगर हमारा ये हॉक्स 11 जो प्रेजेंट है इसका अगर इफ देयर आर ये हॉक्स 11 का भी डिफरेंट फॉर्म्स रहेगा। अगर इसका डबल म्यूटेशन हो जाएगा किसका? हॉक्स 11 का, then there will be no ulna and no radius. ओके, अगर हमारा हॉक्स 13 जो प्रेजेंट है इसका अगर म्यूटेशन हो रहा है देन देयर विल बी नो ऑटोपोड। और इफ ऑटोपोड का मतलब क्या है? हमारा रिस्ट और फिंगर है। अगर इसका म्यूटेशन हो गया देन द फिंगर्स विच आर फॉर्म, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें कुछ डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है, इन दोनों फिंगर्स के बीच कुछ डिस्टिंग्विश नहीं हुआ है। सो दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम्स विल बी कॉज्ड when there will be mutation in the हॉक्स 13। हमारा हॉक्स 13 जो प्रेजेंट है इसका हॉक्स A13 है, डिफरेंट हॉक्स A13 है और हॉक्स B13 है। ठीक है, अगर हॉक्स A13 का म्यूटेशन हो गया then there will cause a syndrome that is hand foot genital syndrome। ठीक है, अगर हॉक्स D13 का म्यूटेशन हो गया देन हमारा हैंड और फिट का जो डिजिट्स जो प्रेजेंट है इट विल बी फ्यूज्ड। Okay, this was all about the Hox genes and the mutation case of the Hox genes. जो present है anterior and posterior portion, it is decided by a small block of mesodermal tissue. ठीक है, ये जो small block of mesodermal tissue जो present है, हम एक एक्सपेरिमेंट में क्या परफॉर्म किया गया कि ये मेसोडर्मल टिश्यू जो कि पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट था, जब वो ट्रांसप्लांट किया गया एंटीरियर पोर्शन पे देन द विंग्स वाज डुप्लीकेटेड और वी कैन टेल दैट जो पोस्टीरियर एरिया में जो पोर्शन होना चाहिए था वो एंटीरियर एरिया में भी हो गया। ये एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में क्या होता है? जब हम बात करेंगे हमारा हैंड का, ये जो लिम्ब का जो फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा एंटीरियर पोर्शन एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट है पोस्टीरियर पोर्शन। जो एंटीरियर पोर्शन में प्रेजेंट है हमारा थंब प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियर एंड में प्रेजेंट है हमारा स्मॉल फिंगर और वी कैन टेल दैट इट इज आल्सो नोन एज पिंकी फिंगर। ठीक है, जब पोस्टीरियर एरिया से ये मेसोडर्मल टिश्यू ट्रांसप्लांट किया गया एंटीरियर रीजन पे, यहाँ पर देखा गया कि हमारा जो स्मॉल फिंगर जो प्रेजेंट है ये हमारा एंटीरियर रीजन में भी प्रेजेंट था और वी कैन टेल दैट the things which were produced in the posterior end it was duplicated in the anterior end। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया है। ओके, here the duplication has taken place। ओके, ये जो मेसोडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मेसोडर्मल टिश्यू जो प्रेजेंट है इसे बोलते हैं ZPA which is known as zone of polarizing activity। zone of polarizing activity। ये जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी
के लिए एक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है विच इज नोन एज सोनिक हेजॉग। ये सोनिक हेजॉग इट डिफाइंस द जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे जो जोन ऑफ पोलराइजिंग एक्टिविटी जो प्रेजेंट है इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ सोनिक हेजॉग। सो if we transplant the sonic hedgehog into this anterior region, also the things which needs to be formed in the posterior region it is being duplicated. Okay, so यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि implant sonic hedgehog producing fibroblasts into anterior portion of limb bud। जब sonic hedgehog एक fibroblaст था जो कि sonic hedgehog का प्रोडक्शन कर रहा था, उस टाइप का sonic hedgehog अगर हम anterior portion में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, it will form the mirror image। okay, ये जो लिम्ब या विंग्स का अगर जो भी फॉर्म हो रहा था उसका डुप्लीकेशन हो जाएगा। वी कैन सी दैट यहाँ पे जो प्रेजेंट है दिस इज द नॉर्मल डेवलपमेंट, बट व्हेन वी ग्राफ्टेड द सोनिक हेजॉग इन द एंटीरियर रीजन दिस नॉर्मल डेवलपमेंट जो भी फॉर्म हो रहा था यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक डुप्लीकेट हो चुका है। ठीक है, और हमारा जो एंटीरियर और पोस्टीरियर रीजन में जो फॉर्मेशन हो रहा है इन केस ऑफ टेट्रापोड लिम्ब वो क्या है, वो दे आर द डिजिट्स। ये जो प्रेजेंट है ये डिजिट्स है, यहाँ पे हो रहा है एंटीरियर रीजन पे हो रहा है हमारा थंब, और जो पोस्टीरियर रीजन जो प्रेजेंट है यहाँ पे हो रहा है हमारा पिंकी और स्मॉल फिंगर। ओके, सो we will see how the sonic hedgehog जो zone of polarizing activity था which was producing the sonic hedgehog, and this zone of polarizing activity was defined by the sonic hedgehog, how the sonic hedgehog plays a role in forming the deserts। ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम देयर आर 5 टाइप ऑफ डिजिट, डिजिट 1 2 3 4 एंड 5। ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है इट इज डिसाइडिंग द व्हिच डिजिट विल फॉर्म इन व्हिच रीजन। ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है इसका टाइम और कंसंट्रेशन डिसाइड कर रहा है कि वो एंटीरियर एंड में क्या फॉर्म करेगा और पोस्टीरियर एंड पे क्या फॉर्म करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिजिट 1, ये जो डिजिट 1 जो प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन, और ये डिजिट 1 जो प्रेजेंट है एंटीरियर रीजन पे इट इज सोनिक हेजॉग इंडिपेंडेंट। यहाँ पे अगर सोनिक हेजॉग प्रेजेंट नहीं होगा देन ओनली हियर डिजिट 1 विल फॉर्म। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिजिट 4 और डिजिट 5 जो प्रेजेंट है it is expressed by the sonic hedgehog amount of time or the duration of time sonic hedgehog is present, it is deciding that it will form the digit number 4 and digit number 5. In the same way the digit 3 is formed by the time, by the duration of the time as well as concentration। यहाँ पे जो digit sonic hedgehog का concentration जो है यहाँ पे high होगा। okay, because the sonic hedgehog it is produced in more amount of time, it is produced in more time, then अगर इसका concentration यहाँ पे high होगा then it will be diffused to the nearby in a side place। okay, here what happens, the amount is little bit less as well as it is in some duration of the time। so sonic digit 3 is decided by both the time sonic hedgehog is expressed as well as the amount or the concentration of sonic hedgehog is expressed। The digit 2 which is present it is decided only by the concentration, here it does not require any time, where in case of digit 2 और digit 1 जो present है यहाँ पे कुछ भी sonic hedgehog का presence भी नहीं चाहिए। If the sonic hedgehog is absent then only it will form the digit 1 which is present in the anterior region। और digit 5 और digit 4 कहाँ पे present है, it is present in the posterior region। okay, so यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो यहाँ पे है हमारा digit 5 और digit 4, ये जो प्रेजेंट है it is present in the ZPA, ये जो प्रेजेंट है ये ZPA पे प्रेजेंट है which is forming the digit 5 और digit 4 जो प्रेजेंट है ये सोनिक हेजॉग का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सोनिक हेजॉग का जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, हमारा हाइंड लिम्ब पे हो रहा है। ठीक है, we can see here that the digit 4 जो present है it is also producing sonic hedgehog as well as digit 5 is producing the sonic hedgehog, but digit 4 यहाँ पे
सोनिक हेजोग का प्रोडक्शन कर रहा था, यहाँ पे डिजिट 5 पे कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट स्टेज पे क्या हुआ, डिजिट 4 अभी सोनिक हेजोग का प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, बट इन दैट टाइम in the digit 5, the digit 5 is producing the sonic hedgehog here. So here what happens, the time duration of production of sonic hedgehog is less in digit 4. digit 4 का टाइम लेस है सोनिक हेजॉग का प्रोडक्शन करने के लिए एज कंपेयर टू डिजिट 5. ठीक है, डिजिट 5 के कंपैरिजन में डिजिट 4 का the duration of time sonic hedgehog is produced is less. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि the time is more in digit 5, the production of sonic hedgehog, the time duration in which the sonic hedgehog is produced in digit 5 is more in case of digit 5 than as compared to digit 4. So यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा pinky finger. So here the digit 5 which is present, it is decided by the concentration and time duration. Time is more. और यहाँ पे भी क्या है, it is also decided by the concentration as well as time. So here यहाँ पे को क्या हो रहा है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हो रहा है, या यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग. ये जो डिजिट 3 जो प्रेजेंट है, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ सोनिक हेजॉग कंसंट्रेशन एज वेल एज टाइम. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैराक्राइन as well as autocrine signaling हो रहा है. ठीक है, next is digit 2. digit 2 जो present है, it is decided by the concentration. ये जो concentration कहाँ से आएगा concentration? ये जो digit 4 और digit 5 जो प्रोड्यूस कर रहे थे सोनिक हेजॉग, वो क्या होगा, वो डिफ्यूज होगा. डिफ्यूज होके ज्यादा कहाँ आएगा, ज्यादा आएगा हमारा 3 के पास. देन द लेस विल बी प्रेजेंट इन द डिजिट 2. सो ये जो प्रेजेंट डिजिट 2 जो हो रहा है, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द डिफ्यूजिबल, इट इज डिपेंड अपॉन द डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल. ठीक है, और जो डिजिट 1 जो प्रेजेंट है, इट इज totally independent of the amount of sonic hazard. ओके, करेंगे ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है, उसका वर्किंग मैकेनिज्म, ये किस किस चीज में वर्क कर रहा है, उसका मैकेनिज्म हम डिस्कस करेंगे. The first thing how the sonic hedgehog was working was, it was working as a morphogen. ठीक है, how it is working as a morphogen for specifying the digits. अगर उसका concentration high है, then it is forming the posterior end. If the concentration is low or absent, it was producing the anterior end. ओके, ये एक काम था हमारा सोनिक हेजॉग का. सो दूसरा काम क्या है, इट इज वर्किंग एज ए माइटोजेन. कहाँ पे ये माइटोजेन की तरह वर्क कर रहा है, लिम्ब बर्ड का डेवलपमेंट पे भी ये वर्क कर रहा है, एंड इट इज वर्किंग एज ए माइटोजेन. तो हम हिसाब से हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारा सोनिक हेजॉग लिम्ब डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहा है. ठीक है, जब हमारा लिम्ब डेवलपमेंट इनिशियल स्टेज पे है, ड्यूरिंग दैट टाइम मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल सेल का इन्वॉल्वमेंट है. मेसोडर्मल सेल में FGF10 का सिक्रेशन हो रहा है, एंड दिस FGF10 इज डिवाइडिंग एंड इट इज activating the WNT3 or WNT3A and WNT3 in the ectoderm. Okay, ये जो ectoderm जो present है, यहाँ पे FGF8 का भी फॉर्मेशन हो रहा है by this WNT3. Okay, along with this FGF10 जो present है, it was forming the apical ectodermal ridge. By how it was forming the apical ectodermal ridge? By expanding the ectoderm. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है, ये फिर से इंड्यूस कर रहा है FGF10 को फॉर्मेशन होने के लिए. दिस वाज ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज, बट इन द लेटर स्टेज when the limb bud is growing in the posterior end, what happens, there is zone of polarizing activity. यहाँ पे क्या है, अभी ये यहाँ पे है हमारा सोनिक हेजॉग प्रेजेंट है. ये जो सोनिक हेजॉग जो प्रेजेंट है, what it is doing is it is inducing the green one. ये जो प्रेजेंट है, इट इज इंड्यूसिंग द ग्रीन वन. ठीक है, हमारा ग्रीन वन का फंक्शन क्या है, ग्रीन वन का फंक्शन ये है कि इट विल इनहिबिट द BMP.
BMP को ये इनिबिट करेगा। ये BMP का काम क्या है? दैट इट विल इनिबिट द FGF8। ओके, ये जो प्रेजेंट है इट विल इनिबिट FGF8। ये FGF8 का काम क्या है? इट विल इनिबिट द ETB4 और ETB5। ETB4 और 5 का काम है कि इट विल इनिबिट द सोनिक हैजो। ओके, सो अगर ये पाथवे पूरा रन हुआ देन देयर विल बी नो सोनिक हैजो। Okay, but sonic Herzog is required in this zone of polarizing activity or in the posterior region. ये जो posterior region present है यहाँ पे हमें sonic Herzog चाहिए because क्यों zone of polarizing activity में sonic Herzog चाहिए? Because due to this sonic Herzog only the zone of polarizing activity is decided, or this zone of polarizing is specified by the amount of sonic Herzog which is present. Okay. ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है जो एंटीरियर रीजन पे है वो क्या करेगा? ETB45 को एक्टिवेट करेगा एंड दिस ETB45 इज इनहिबिटिंग द सोनिक हैजॉग। सो ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है वो पोस्टीरियर रीजन पे क्या कर रहा है? वो पोस्टीरियर रीजन पे ETB45 को इनहिबिट कर रहा है। कहाँ पे? पोस्टीरियर रीजन पे इट इज इनहिबिटिंग ETB45. What does ETB45 was doing? It was giving the sonic hazard. It was inhibiting the sonic hazard. So ये जो sonic hazard को inhibit कर रहा था ETB45, अभी ये sonic hazard को inhibit ना करे इसीलिए FGF8 ETB45 को inhibit कर रहा है। ठीक है, ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है what is doing in the posterior end कौन सा है? This region is known as the posterior end. ये posterior end में ये जो FGF8 जो प्रेजेंट है what it is doing is it is inhibiting the ETB4 और ETB5. ओके, ये ETB45 का क्या काम था? ये ETB45 का काम ये था कि ये सोनिक हैजॉग को इनहिबिट करेगा, but the sonic hazard is needed in the posterior end. So what is the role of FGF8 is it will inhibit the ETB45. Okay, as ETB45 will not work here, then what it does is it produces sonic hazard where in the posterior end. ओके, ये एंटीरियर एंड में क्या करेगा? ये एंटीरियर एंड पे ये FGF8 जो प्रेजेंट है इट विल गिव ETB45. अगर ETB45 को वो प्रोड्यूस करेगा देन व्हाट इट विल डू? इट विल इनहिबिट द सोनिक हैजॉग व्हाइल ड्यूरिंग द लिम्फोइड डेवलपमेंट। जब ये सोनिक हैजॉग को इनहिबिट कर रहा है then it will not form the posterior end का formation नहीं होगा, then what it will form? It will form the anterior end. This is how the sonic hazard is working here. Okay, यहाँ पे क्या था? ग्रिम्लिन था, GRIM1 था, GRIM1 was inhibiting BMP. ये जो इसका काम क्या है? इसका GRIM1 का काम ये है कि ये BMP को इनहिबिट करेगा। ये BMP का काम क्या है? कि ये FGF8 को इनहिबिट करेगा। So this is working as a positive loop. So next diagram